Hello students, welcome to DSolve YouTube channel. In the series of class 9th maths, in the last video we have covered exercise 7.1, and in this video we are going to see some theorems and then also try to cover exercise 7.2. So without any delay, let's start our video. So the heading is such that some properties of triangle, some properties of triangle. Now you have studied about many types of triangles like equilateral triangle, isosceles triangle, and blah blah, right? So importantly we are talking about here isosceles triangle. Isosceles triangle. So suppose this is a triangle A, B and C. This side AB and AC are equal, so this is called isosceles triangle. When two sides are equal in a triangle, it is called isosceles triangle. Okay. So we are going to study about a theorem which is about isosceles triangle, which is given as theorem 7.2 actually. Okay, so it says that angles opposite to equal side, angles opposite to equal sides, these are equal sides. And what are the angle opposites? Opposite angle of this side is this C, and opposite angle of this side is this angle B. So angles opposite to equal sides of an isosceles triangle, of an isosceles triangle are actually equal, are actually equal, are equal, which means this angle ABC and this angle ACB is equal, है ना? If AB equals to AC, then angle ABC equals angle ACB. This is our theorem. Okay, how can we prove it? How can we prove it? So we here use the um, congruence. Okay, so let us draw something here. This AD I am going to draw is the angle bisector and bisector of angle A, which means this and this angle is equal. Okay, we have drawn it. Now let us prove it. Let us take triangle ABD and triangle ACD. Okay, you can see the AD is a common side, so AD equals to AD is a common side. Now we know that AB is equals to AC because it is an isosceles triangle. Isosceles triangle. Now as we have drawn AD as the angle bisector, so these two angles are also going to be equal, which is angle BAD equals to angle CAD. This is also given, or we have supposed it, right? We have supposed it. So we can see that this side is equal. Okay, this side is equal and this angle is between both these two sides. So we can say that triangle ABD is congruent to triangle ACD because of side angle side rule. So as two triangles are proved congruent, then all the corresponding parts of congruent triangles are equal. We have understood it in last videos, which is we call it in short that CPCT, right? So we can say that this angle ABD is equals to angle ACD because of CPCT. So we have proved it. We have proved the theorem 7.2. So you can prove it.
there is also converse of this theorem, converse of this theorem, and it is stated as the sides opposite to equal angles, the sides opposite to equal angles are equal. अगर ये दो एंगल सेम है, इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड मतलब ये और इसकी अपोजिट साइड ये आपस में दोनों इक्वल होंगे, है ना। ये क्या है, इस थ्योरम का कन्वर्स है, 7.1 का क्या है, कन्वर्स, है ना, सॉरी 7.2 का कन्वर्स। चलिए कुछ एग्जांपल करके देखते हैं, बड़े अच्छे एग्जांपल दिए हुए हैं। Example 4. Okay, it is given that in a triangle ABC, this is our triangle ABC, ABC. Okay, the bisector AD of angle A, एंगल A का बाइसेक्टर दिया हुआ है AD, दिस इज बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC, BC पे क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री, इधर भी 90 है तो उधर भी 90 बनाएगा, दोनों साइड 90 बनाएगा। सो शो दैट AB इक्वल्स टू AC, हमें प्रूव करना है AB इक्वल्स टू AC। और क्या प्रूव करना है हमें, दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। सो लेट अस प्रूव इट नाउ। लेट्स टेक बोथ दिस ट्राइंगल, दिस एंड दिस, ट्राइंगल ABD and triangle in, है ना, in triangle ABD and in triangle ACD. Again AD is common, ना, common side. Next ये क्या लिया अपन ने, एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या इक्वल है, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के अंदर में, ये वाला इसके अंदर में, कौन सा एंगल है ये, BAD, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, है ना। ये क्या है एक्चुअल में, ये भी गिवन है हमें, और हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC साइड के ऊपर, तो दोनों साइड क्या बना रहा है, 90 डिग्री, मतलब एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इज 90 डिग्री, राइट, बोथ आर एक्चुअली 90 डिग्री। सो अब हम देखें, चेक करें, ये एंगल है, ये साइड है, और ये एंगल, मतलब कौन सा है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन कौन से, ABD is congruent to triangle ACD and angle side angle rule से, ओके। तो अब जो पार्ट होंगे बाकी की वो सारे इक्वल हो जाएंगे, तो AB भी किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा, किस वजह से, CPCT, ओके, corresponding parts of congruent triangles। AB और AC अगर इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जिस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस, ठीक है। या यूं भी ले सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और CPCT से ये दोनों भी इक्वल होंगी, BD और DC, BD और DC भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि ये क्या होगा कि अपने को मेनली ये दोनों साइड लेना है ना, ये मेन AB और AC। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एग्जाम्पल प्रूव हो गया है, जो हमसे रिक्वायर्ड था हमने वो प्रूव कर दिया। चलिए एग्जाम्पल 5 करते हैं। एग्जाम्पल 5, E and F are respectively the midpoints of equal side, ट्राइंगल दिया हुआ है ABC,
ए बी सी, ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिव द मिड पॉइंट्स। ई और ई एफ क्या है इसके मिड पॉइंट्स है, ई और एफ। ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी आपको क्या दी हुई है, दोनों साइड्स इक्वल दी हुई है ना, ए बी इक्वल्स टू ए सी इज गिवन। शो दैट बी एफ इक्वल्स टू सी ई। ओके बी एफ, अच्छा ठीक है, बी एफ इक्वल्स टू सी ई। इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। और ये मिड पॉइंट दे रखे हमें, मिड पॉइंट दे रखे, इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, और पूरी ए बी और ए सी भी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, बी और सी को इक्वल लाना है, बी सॉरी बी एफ और सी को, ठीक है। तो ऐसा ट्राइंगल देखना पड़ेगा जिसमें हमें ये दोनों मिल रहे हैं, बी एफ और सी। अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखें और हमें ये भी दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो हमें इसका भी यूज करना है। तो ये वाला ट्राइंगल अगर अपन देखते हैं, ये वाला, ये ट्राइंगल ऊपर वाला कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी एफ, कौन सा, ए बी एफ। दूसरा ए सी ई एंड ट्राइंगल ए सी ई। इन दोनों ट्राइंगल की अगर बात करें तो ए बी इक्वल टू ए सी हमें दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन है। दूसरा और क्या है इसमें, ए बी और ए सी हमें दिया हुआ है, और अच्छा एक बात हमें यहाँ देखनी होगी कि ए बी और ए सी अगर इक्वल है ना, तो मान लो कि ये पूरी कितनी है 20, तो ये भी 20 होगी, ये भी पूरी कितनी होगी 20 होगी। और अगर ई पॉइंट इसका हाफ पॉइंट है तो ये 10 होगी, ये भी 10 होगी, और एफ पॉइंट अगर इसका हाफ पॉइंट है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप इस ट्राइंगल को देख रहे हैं तो इसमें जो ए एफ है और इस ट्राइंगल में ये जो ए ई है, ये भी तो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ए ई या है ना, ए बी एफ में क्या हो रहा है, ए बी एफ में ए एफ इक्वल्स टू क्या होगा, ए, है ना, ये क्या होंगे, इक्वल साइड्स होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, और ये एंगल ए हमारा क्या यहाँ पे कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में क्या आ रहा है, एंगल ए आ रहा है ना, ये कॉमन एंगल। तो आपने कौन कौन सी साइड ली, इस ट्राइंगल की बात करें तो ये वाली साइड ली आपने पूरी ए बी, आपने ये ए एफ वाली साइड भी ली और ये एंगल भी लिया, दोनों साइड्स के बीच का एंगल लिया, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं कौन सा रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड रूल। तो कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई। और हमें क्या प्रूव करना था, प्रूव क्या करना था हमें कि यही, तो ये वाला जो ट्राइंगल है आपका और ये वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों क्या प्रूव हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो इनकी बची हुई साइड कौन सी, एक तो बी एफ और उधर कौन सी बची हुई है, सी ई, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, किस वजह से, सीपीसीटी की वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल 6 देखते हैं। एग्जाम्पल 6, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, ये एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी, विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट बी इक्वल्स टू सी डी। ये जो बी वाला पार्ट है ये किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है ना, ये दोनों पार्ट क्या है, ये इतना पार्ट और इतना पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है, ओके। और क्या दिया हुआ है, शो करना है हमें, टू शो
ए डी इक्वल्स टू ए, है ना, ए डी, अच्छा ए डी इसको मिलाना पड़ेगा, ए डी इक्वल्स टू ए ई, ए डी इक्वल्स टू ए ई हमें प्रूव करना है। तो ए डी इक्वल्स टू ए, तो हमें लेना होगा ऐसे ट्राइंगल जिसमें ए डी भी आ रहा है ए ई भी आ रहा है। तो हम लेंगे ट्राइंगल कौन सा, ए बी ई, कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल, ये हो गया एक, ये लेंगे ए डी सी। देखो ए बी ई लिया ना, उसके बाद अपने लिया ए डी सी, ठीक है। एक सेकेंड, ए बी, हमें क्या प्रूव करना है, ए डी इक्वल्स टू ए प्रूव करना है। तो ये ट्राइंगल भी हम ले सकते हैं एबीडी, एबीडी और एईसी भी ले सकते हैं, ये ले लेते हैं ए बी डी, कौन सा, एबीडी, एबीडी और ए सी ई एंड ट्राइंगल ए सी ई। चलो इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमें गिवन है। दूसरा एक सेकेंड, अगर ये वाला ट्राइंगल ले लेते तो क्या हो जाता, एक सेकेंड एक सेकेंड, इस ट्राइंगल को लिया अपन ने, ये दोनों इक्वल हो गई है, और हमें अब देखना होगा कि बी डी, हाँ एक चीज और, बीई और सी डी आपस में क्या है, इक्वल है, बीई और सी डी। अगर मैं मान लेता हूं ये पूरी है 15, कितनी 15, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, मैंने ऐसा मान लिया, मान लो, है ना। या फिर मैं इसको इसको कुछ और मान लेता हूँ, इसको 6 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 6 और 5 11, और ये भी कितना हो रहा है, 6 और 5 11। तो उसने दिया ही हुआ है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करूं, इन दोनों ट्राइंगल, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये वाले दोनों पार्ट्स इक्वल आ रहे हैं, है ना, मतलब क्या, बी डी इक्वल्स टू इसी, या फिर यूं समझो कि ये जो बीई है ना, बीई है, बीई, बीई में से मैं अगर ये डी पार्ट हटा लूं, और जो आपका सी डी है उसमें से भी अगर मैं डी पार्ट हटा लूं, दोनों में से ये डी पार्ट हटा लिया हमने, तो ये बी में से अगर मैं ये हटा लूं तो बी डी बचा, ये कितना हो जाएगा, बी डी, है ना। अब हमें ये पता है, हमें क्या दिया हुआ था कि बी इक्वल्स टू सी डी, ये हमें गिवन है। तो हमने दोनों साइड क्या किया, डी माइनस किया, डी माइनस किया, तो सेम चीज माइनस करी हमने, तो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, तो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, है ना। मान लो कि ये 10 है तो ये भी 10 है, 10 में से मैं ये डी को मान लो 7 मान लेता हूँ, 10 में से 7 इधर माइनस कर रहा हूँ, इधर भी 10 में से 7 माइनस कर रहा हूँ, तो अभी भी वैल्यू तो इक्वल ही है। तो बी ई माइनस डी ई को अगर मैं लिखूँ तो ये एक्चुअल में क्या आएगा, बी डी, और सी डी माइनस डी को लिखूँ तो ये क्या आएगा, ई सी या फिर सी, ठीक है। ये दो चीजें प्रूव हो गई है, दो चीजें हमारे पास प्रूव हो गई है। कौन चीज क्या लेगी, कोई एंगल है, अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे हाँ, हमने अभी जो थ्योरम पढ़ी वही वाली अप्लाई करनी है कि दो साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब वो कौन सा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो साइड्स इक्वल है उनके सामने के एंगल भी तो इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, है ना, अपोजिट वही एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक तो ये साइड है, ये साइड है, और ये एंगल है बीच का, मतलब साइड एंगल साइड रूल। तो ट्राइंगल कौन कौन से प्रूव हो गए हैं, एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीई। तो हमें क्या प्रूव करना था, एडी और एई, ये एडी और एई भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, किस वजह से हो जाएंगे,
CPCT। तो ये एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। चलो जल्दी से एक्सरसाइज निपटा लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन फर्स्ट। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, हाँ ठीक है, ये एबीसी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ए बी इक्वल टू AC दे रखा है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इस एंगल बी की बाइसेक्टर ली अपन ने और सी की बाइसेक्टर ली। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे, O पे मिलती है ना। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है और ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है। ज्वाइन A टू O, ये O है, इस A को अपने को O से ज्वाइन करने की बोला है उसने। शो दैट OB इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OC हमें प्रूव करना है फर्स्ट। OB इक्वल्स टू OC, ठीक है। उसके बाद AO बाइसेक्ट एंगल, AO जो है, AO वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट्स एंगल A। चलिए अब हमें लेना होंगे ऐसे ट्राइंगल। हाँ ठीक है, इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल पूरा और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। कौन कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल AOB एंड AOB और AOC, इन ट्राइंगल AOC, ठीक है। OB OB OB, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है हमको, AB इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है इन दोनों ट्राइंगल में, AC दिया हुआ है, गिवन, ठीक है, ये गिवन है। दूसरा देखो, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स, इसका सामने वाला पूरा एंगल B है और इसके पूरा वाला एंगल C है। तो मान लो कि ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा पूरा। अब ये क्या है, इसकी एंगल बाइसेक्टर है BO, इसका मतलब ये 25 है तो ये भी 25 है, ये भी 25, ये भी 50 है तो ये इसमें भी क्या होगा, 25 है तो 25 है, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में देखो तुम तो कौन सा ABO, कौन सा एंगल ABO, वो किसके इक्वल होगा, एंगल ACO के, ठीक है। क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, ये एंगल बाइसेक्टर से। तो दूसरा एक और चीज क्या लगी इसी में, कि जो इक्वल साइड्स होती है उनके सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, उन दोनों का यूज करके अपन ने इसको बनाया, ठीक है। और क्या हो रहा है इसमें, AO, AO इसमें क्या है, कॉमन है ना, AO इसमें दोनों में आ रहा है, A इक्वल्स टू AO, कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड हो गई। तो आप ध्यान से देखो तो ये वाली साइड ली हमने, ये वाला एंगल लिया है और ये वाली साइड है, तो ये बीच का एंगल तो है नहीं, क्योंकि ये साइड होती तो बीच का एंगल होता। तो ये क्या एक्चुअल में, एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड। ये कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, AOB। एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, फिर हमको जो भी प्रूव करना है वो सब आसान हो जाता है। मेन चीज क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमें क्या प्रूव करना, OB इक्वल्स टू OC। तो ये OB इसकी साइड थी और OC इसकी साइड थी, तो ये हो गया OB इक्वल्स टू OC, किससे, CPCT से। दूसरा बोल रहा है AO बाइसेक्ट एंगल A। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, मतलब CPCT से, तो ये एंगल भी इक्वल होगा, कौन सा, इसको ले लो BAO, कौन सा एंगल BAO इक्वल्स होगा किसके, CAO के, एंगल CAO के। तो अगर ये दोनों दोनों एंगल इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है, ये जो AO लाइन है इसकी क्या है, बाइसेक्टर है। तो ये भी प्रूव हो गया कि AO बाइसेक्ट एंगल A, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो ये किस वजह से, CPCT की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एडी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ठीक है। तो ये इस तरह से है कि थोड़ा सही बनाते हैं, ये बीसी जो है आपकी साइड, इसका बाइसेक्टर है, मतलब दोनों पार्ट्स इक्वल है ना, परपेंडिकुलर भी मतलब 90 डिग्री बना रहा है, दोनों साइड बनाएगा। और दिया है आपको, शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। एबीसी को आपको क्या बताना है, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस बताने के लिए क्या चाहिए आपको, ये दोनों साइड को इक्वल बताना है, कुल मिला के एबी और एसी को क्या बताना है, इक्वल बताना है। तो बड़ा सिंपल है, इसके लिए आपको लिए क्या लेना है, ये ओ ले लो, कोई भी पॉइंट, ओ ही था ना, हाँ वो, या डी ले लो की बात, डी ले लो। तो ट्राइंगल ले लो आप एबीडी, है ना, ट्राइंगल कौन सा, एबीडी। और कौन सा ट्राइंगल लोगे, एसीडी। देखो एडी एडी कॉमन है, एडी एडी कॉमन है। उसके बाद ये दिया हुआ है हमको क्या, बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये भी गिवन है। और दूसरा ये परपेंडिकुलर है, मतलब कौन सा एंगल, बी ए डी, बी सॉरी बी, अरे ए बी, ए डी बी, एक्चुअली ए डी बी इक्वल्स टू ट्राइंगल ए डी सी, ये 90 डिग्री है दोनों। देख लो बीच का है क्या एंगल, तो ये कॉमन साइड है, ये साइड है, और ये बीच का एंगल है, तो कौन सा हो जाएगा, साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट आ गया, इसका मतलब क्या, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी मतलब क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल, दोनों साइड से आ गए इक्वल आ गए। ठीक है, आसान है प्रूव करने से। चलो क्वेश्चन 3 कर दें। तो इसको ऐसे इस तरह से दिया हुआ है आपको, ये ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, ए बी इक्वल्स टू ए सी। एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रखे बी और सी एफ, ये बी एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री बनाएगा ये, और ये सी एफ एल्टीट्यूड है, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। तो आपको बताना है, शो दैट दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल, मतलब ये बी और सी एफ को इक्वल बताना है। तो ऐसे ट्राइंगल ले लो जिसमें एल्टीट्यूड आ रहे, और आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल दिए हुए, तो ये वाला ट्राइंगल ले लो, कौन सा, ए बी एफ, है ना, इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड ए बी एफ हो गया, दूसरा आ जाएगा ए सी ई, ए सी ई। तो सबसे पहले आप देख लो कि ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। दूसरा 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 अच्छा, ये एंगल 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। इस वाले ट्राइंगल में कौन सा, ए एफ बी, एंगल ए एफ बी इक्वल्स टू कौन सा, इस वाले ट्राइंगल में ए एफ सी, ट्राइंगल ए एफ सी, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री। और क्या है, और क्या है, एंगल ए कॉमन है दोनों में, एंगल है दोनों में क्या है, कॉमन। तो देख लो कौन कौन सा एंगल यूज किया अपन ने, एक तो एंगल यूज किया है ना, और ये एंगल और ये साइड, ये तीनों अलग अलग है। ये कौन सा रूल हो गया, एंगल एंगल साइड रूल से, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी एफ, किस वजह से, सिंपलिसिटी की वजह से। ठीक, आसान है आपके लिए, तो एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद हमारे लिए सारा काम आसान है। ये आप सिस्टमेटिक तरीके से आपको करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, एबीसी इज अ ट्राइंगल, एबीसी इज अ ट्राइंगल, बी एंड सी एल्टीट्यूड दे रखे बीई, सी एफ, ठीक है, ये बीई है, ये एल्टीट्यूड है ना, और ये सी एफ है, और ये दोनों आपको इस बार इक्वल दे रखे हैं। तो आपको प्रूव करना है इस बार कि ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई और वही वाले जो ट्राइंगल अभी लिए थे अपन ने, एस सी एफ, ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस है।
और इस बार आपको ए बी और ए सी नहीं दिया हुआ है, इक्वल नहीं दिया है, ए बी और ए सी इक्वल आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो अब भी आसान है, वही वाले ट्राइंगल लेना है दोनों। कौन सा, ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी ई। तो सबसे पहले तो एंगल ए कॉमन है दोनों में, कॉमन, ये 90 डिग्री वापस से वही वाला एंगल बी ई, सॉरी हाँ बी ई ए और बी ई ए, और एंगल सी एफ ए, ऐसा भी बोल सकते हैं, ये दोनों क्या 90 डिग्री। और एक चीज हमें दी हुई है क्या, बी इक्वल टू सी एफ, ये हो गया प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, अब देख लो बस कि एंगल बीच का है क्या, एक तो ये एंगल लिया अपन ने और ये एंगल लिया और साइड ये नहीं, ये एंगल एंगल साइड लगेगा इसको, कौन सा, एंगल एंगल साइड रूल। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो बाकी पार्ट है वो इक्वल हो जाएंगे, मतलब जो ए बी है वो ए सी इक्वल हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी प्रूव हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिल्कुल ये ए बी सी और ये नीचे दे रखा है ये डी बी सी, ये दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। सेम बेस इनमें बी सी शो दैट एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। एंगल ए बी डी और ए सी डी को इक्वल बताना है, ओके। ए बी डी और ए सी डी को इक्वल बताना है, ये पूरा का पूरा एंगल दोनों इक्वल बताना है। ए बी सी दे रखा है, डी बी सी दे रखा है, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और चलो 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 करते हैं इसको। दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब देखो, अगर अपन इन ट्राइंगल एबीसी देखे और एंड इन ट्राइंगल ट्राइंगल डीबीसी देखे, तो सबसे पहले बीसी बीसी कॉमन है दोनों में, दूसरा बीसी बीसी कॉमन है। हमें यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना होगा, क्या ड्रॉ करना होगा, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, पर वो उससे भी काम नहीं बनेगा। ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, ऐसा करने से भी ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, ठीक है। हाँ चलिए ड्रॉ करके देखते हैं क्या होता है। ये अपन ने क्या किया, ए को डी से मिलाया है ना। अब अपन ट्राइंगल भी चेंज करते हैं, ट्राइंगल अब अपन लेते हैं कौन से, ये वाले ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। तो आप देखोगे इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले एडी एडी कॉमन होगा, एडी एडी कॉमन। दूसरा अगर आप देखो तो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, तो ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एसी दिया हुआ, ए बी इक्वल टू एसी दिया हुआ। दूसरा ये चीज देखो, हमें क्या पता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब क्या, एंगल एबीसी इक्वल होगा किसके, एंगल एसीबी के, ठीक है, ये हमें पता है। दूसरा नीचे से देखिए तो एंगल डीबीसी इक्वल होगा किसके, एंगल डीसीबी के, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, एंगल एबीसी प्लस एंगल डीबीसी, है ना। मान लो कि ये ऊपर वाला 50 है, तो ये भी 50 है, मान लो ये नीचे वाला 40 है, तो ये भी 40 है। तो अगर आप 50 और 40 ऐड कर रहे हो तो कितना हो रहा है, 90। इधर भी 50 40 ऐड कर रहे हो, 90, मतलब ये दोनों एंगल्स को भी मैं सम करूं तो आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, एसीबी प्लस डीसीबी। अच्छा ए बी सी
और DBC मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, पूरा एंगल B बना रहे हैं, या इसको बोल सकते हैं एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। हो रहा है ना? तो ये तो प्रूव हो गया यहाँ पे यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ABC और AC भी इक्वल है, BD इक्वल्स टू DC भी इक्वल, BD इक्वल्स टू DC भी दे रखा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है, अगर अपन ये भी देखें कि जो BD है वो किसके इक्वल आ रहा है, DC के इक्वल आ रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों साइड 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 लगी है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी जो है वो अब आएगी 7.3 में। पर अगर हमें यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इसका एंगल होगा ABD और इसका एंगल कौन सा होगा ACD, ये दोनों इक्वल भी आ सकते हैं, किसकी वजह से, सिटी की वजह से। और अगर अपन साइड रूल ना लगाए तो हम ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इक्वल्स टू AC। ये ABC बना लिया मैंने, ABC, AB इक्वल्स टू AC बना लिया। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, BA को मैंने D तक प्रोड्यूस किया है, ठीक है, सीधा सीधा ये D तक, पॉइंट D तक, ठीक है। सच दैट AD इक्वल्स टू AB, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। AD तक इतना प्रोड्यूस करना है कि ये AB और ये AD, ये दोनों पार्ट आपस में क्या आएंगे, इक्वल है, मतलब ये तो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल ये भी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, AD इक्वल्स टू AB, शो दैट BCD इज अ राइट एंगल, BCD इज अ राइट एंगल, यार प्रॉपर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो ये मान लिया अपन ने ABC और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसको इतना आगे बढ़ाना है अपने को, इस तरह से, है ना, वहां से सीधी लाइन खींचनी है इसे, ये D पॉइंट तक। तो ये AB और AD आपस में क्या इक्वल है, हमें दिया हुआ, ये तीनों पार्ट इक्वल है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल है कौन सा, कहा गया, BCD, ये BCD ये पूरा का पूरा कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्रूव करना है। अगर ये हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, ये दोनों साइड्स इक्वल दिए हुए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अच्छा इस ट्रायंगल को देखो तो इसमें भी दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, क्योंकि ये अगर इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो कि ये 10 है साइड और ये भी 10 है, ये भी 10 होगी मान लो, तो इस 10 के सामने वाला एंगल मान लो ये 60 डिग्री मान लो, ये भी 60 डिग्री होगा दोनों। और अगर ये 10 है, ये 10 है, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री होगा। ये मान रहे हैं अपन, है ना, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है ठीक है। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल्स अगर लेंगे, अगर अपन इसमें दो ट्राइंगल ले लेते, कौन से, ए सी, ए सी बी, नहीं एक्स एक्स, ए सी बी, और हम ले लेते हैं ट्राइंगल कौन सा, एन ट्राइंगल, ये ए सी बी हो गया, और ले लेते हैं एक और ए सी डी, ए सी बी और ए सी डी, तो दोनों में ए सी कॉमन है। दूसरा हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू क्या है, ए डी है। और एक चीज और हमारे पास ये है कि इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है ए बी सी, कौन सा एंगल ए बी सी, ये इधर किसके इक्वल आ रहा है, एंगल ए डी सी के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साइड साइड है ना, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, और एंगल इधर वाला है, तो ये एंगल एंगल साइड होगी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस है। तो क्या हो गया, ए सी बी और ए सी डी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सपोज अपने को नहीं पता है ना, अपने को नहीं पता ये एंगल्स, तो ये भी एक्स है और ये एक्स है, और ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, तो अगर अपन पूरे ट्राइंगल, ये तो प्रूव हो गए, पूरे ट्राइंगल डी सी बी की बात करें तो उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री। अब एंगल बी कितना है, एक्स, और एंगल सी कितना है, एक्चुअल में एक्स और एक्स दोनों को मिला के 2x है, और एंगल डी कितना है, एक्स, 180 डिग्री। तो ये हो गया 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x 4 का डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, मतलब 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 और ये भी 45, और यहाँ पे प्रूव हो गया हमारा क्या, एंगल बी सी डी, जो कि क्या है, x प्लस एक्स है, मतलब 45 प्लस 45, ये कितना आ गया, 90। ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है। तो जल्दी से बाकी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, कहाँ पे राइट एंगल है, ए पे, ये ए पे राइट एंगल है, यहाँ 90 डिग्री है, ये बी और ये सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद फाइंड एंगल बी एंड सी, बी, अच्छा ठीक है, हाँ ये दोनों इक्वल साइड है, इनके सामने के एंगल्स भी क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। मान लिया ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये 90 डिग्री दे रखा है, तीनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, 2x, ये 90 उधर जाएगा तो 180 में से माइनस होगा 90, x इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, x इक्वल टू 45, ये 45 डिग्री, ये भी 45। क्वेश्चन 8, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझते हैं आप, ये ट्रायंगल अगर एबीसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको तब बोलेंगे जब इसके तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल। तीनों साइड्स इक्वल, इसका मतलब क्या, इसके सामने वाला एंगल ये होगा, और इसके सामने वाला एंगल ये होगा, और इसके सामने वाला एंगल ये होगा। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लिया ये एक्स है तो ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है, तीनों का सम कितना आ जाएगा, 180। तो 3x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, 3 6 18, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60। ये हमें प्रूव करना था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल का मेजर कितना होता है, 60। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.2। इसमें शायद एक एक्सरसाइज और बची है आपकी, हाँ एक एक्सरसाइज और बची है 7.3, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करते हैं बेसिक के साथ। ठीक है,
So thank you for watching this video.